क्लास 10th साइंस का पेपर है 2020-21। इसके 18 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 19 से इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 19 फर्स्ट टू 19 फिफ्थ। Sumiti wanted to see the stars of the night sky. She knows that the needs of telescope to see those distant stars. She find out that the telescope, which are made of lenses, are called refracting telescopes, and the ones which are made of mirrors are called reflecting telescope. So she decided to make a refracting telescope. She bought 2 lenses, L1 and L2, out of which L1 was bigger and L2 was smaller. The larger lens gathers the bands of light, while smaller lens magnifies the images. Big thick lenses are more powerful, so to see far away she needed a big powerful lens. Unfortunately, she realized that a big lens is very heavy. Heavy lenses are hard to make and difficult to hold in the right place also. Since the light is passing through the lens, the surface of the lens has to be extremely smooth. Any flaws in the lens will change the image. It would be looking through a dirty window. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये तो एक स्टोरी दे रखी है। अब इस स्टोरी से इसके आंसर आपको राइट डाउन करने हैं, लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 19 फर्स्ट, based on the diagram shown, what kind of lens would Sumiti needed to make the telescope? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। बी आंसर इज करेक्ट। 19 सेकंड है, if the power of the lenses L1 and L2 are in the ratio of 4:1, what would be the ratio of the focal length of L1 and L2? तो इसका ये आंसर है 4:1। इसका आंसर है 4:1A। नंबर थर्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद ए लेंस? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। m equal to HI/HO। Next question. Sumiti did some preliminary experiment with the lenses and find out that the magnification of the eyepieces L2 is 3. If in her experiment with L2 she found an image at 24 centimeter from the lens, at what distance she put the object? तो गिवन है मैग्निफिकेशन 3 दे रखा है, इमेज का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का फाइंड करना है। तो ऑब्जेक्ट का आपको फाइंड हो जाएगा 24/3 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 8। इसका आंसर सी करेक्ट है, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिति बॉट not so thick lenses for the telescope and polished them. What advantages, if any, would she have with
her choice of lenses? Its correct answer is C. Answer is correct. Not so thick lenses would not make the telescope very heavy and also allow the considerable amount of light to pass. C is correct answer. Question number 20. Read the following and answer any four questions from 21st to 25th. A solenoid is a big helical coil of wire through which a current is run in the order of create a magnetic field. The magnetic field of the solenoid is the separation of the field due to the current through each coil. It nearly uniform inside the solenoid and close to zero outside. It is similar to the field of the bar magnet, having a north pole at one end and a south pole at the other depending upon the direction of the current flow. The magnetic field produced in the solenoid is dependent on a few factors such as the current in the coil, numbers of turns per unit length. The following graph is obtained by the teacher while doing an experiment to see the variation of the magnetic field with respect to current in the solenoid. The unit of magnetic field is given in the length attached is in a millitesla and the current is given in एम्पियर. टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की इकाई है, यूनिट है. अब एक इसमें एक ग्राफ दे रखा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड में. ये ग्राफ है और इसके बाद इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं. 20 का फर्स्ट है, What type of energy conservation is observed in a linear solenoid? तो इसका बी आंसर सही है, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक. इसका बी आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, What will happen if a soft iron bar is placed inside the solenoid? तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं और इसका सही ऑप्शन है बी. द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट. थर्ड क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ. इट्स आंसर ए ही करेक्ट आंसर है इसका, ए बार मैग्नेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ ए स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलेनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ करंट. द मैग्नेटिक फील्ड produced by the solenoid is directly proportional to the string current. Third है, the magnetic field produced by a solenoid is directly proportional to the square of current. Fourth है, the magnetic field produced by the solenoid is independent of the current. Now choose from the following which of the following would be the correct statement. तो बी इज करेक्ट है, बी इज करेक्ट आंसर. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू. फिफ्थ, फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इन सारे स्टेटमेंट मीन्स में से बी आंसर इज करेक्ट. फॉर लार्जर करंट द मैग्नेटिक फील्ड increases non-linearly. B is correct. क्वेश्चन नंबर 21 बी सेक्शन में से, bile juice does not have any digestive enzyme
but still plays a significant role in the process of digestion. Justify the statement. इसका करेक्ट आंसर है the bile juice does not have any digestive enzyme but still plays a significant role to the emulsify the fat for easy digestion. 21st का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड गिव रीजन. तो इसका करेक्ट आंसर है इन बर्ड्स एंड मैमल्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बिकॉज इट प्रिवेंट द प्योर ब्लड मिक्स विद द इम्प्योर ब्लड. Question number 22. State the event occurring during the process of photosynthesis. Is it essential that these steps take place one after the other immediately? Answer is the three events that occur during the process of photosynthesis are absorption, first, second, conversion of light energy to chemical energy, third, splitting of H2O into hydrogen and oxygen. These steps take place after the other immediately. Question number 23. Give a test that can be used to confirm the presence of carbon in the compound with a valency of 4. How is carbon able to contain noble gas configuration in compound? Its answer, if we burn the carbon compound, it breaks down into the CO2 and H2O. Release CO2 if passed through a lime water, it becomes milky. It confirms presence of CO2. Carbon has 4 valency. It can make covalent compound by sharing of electron and achieve noble gas configuration. समझ में आ गया होगा. If we burn the carbon compound and it breaks down in the CO2 and H2O. Released CO2 if passed through the lime water, it becomes milky. It confirms presence of CO2. Carbon has 4 valency. It can make covalent compound by sharing of electron and achieve noble gas configuration. Next question है the number of carbon compound is more than the those of formed by all over the elements put together. Justify the statement by giving 2 reasons. Answer is the number of carbon compound are more than other elements because it can react most of element and its carbon property catenation property also make it versatile. Question number 24. The following observations were made by the student on the treating 4 metals PQRS with the given salt solution. ये एक टेबल दे रखी है, इसको समझ करके आंसर देने नीचे. एक क्वेश्चन है अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. तो रिएक्टिविटी के अनुसार अगर इनको अरेंज करेंगे तो एस आर पी क्यू ये अरेंज हो जाएंगे इस तरह. इस तरह इनको 24 को हम अरेंज करेंगे एस आर पी क्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में. क्वेश्चन नंबर बी है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट formed when Q react with copper sulfate solution. तो इसका रिएक्शन है कॉपर सल्फेट प्लस Q gives कॉपर सॉलिड प्लस QSO4. क्वेश्चन नंबर 25. एक डायग्राम दे रखा है प्रिज्म का.
वाइट लाइट एंटर करती है, 7 कलर में ब्रेक डाउन हो जाती है। A student observed the above phenomenon in the lab as a white light passes through a prism among many other colors. He observed the position of the two colors red and violet. What is the phenomenon called? What is the reason for the violet light to bend more than the red light? अब इसमें क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने ये ऑब्जर्व किया है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सेकंड हाफ है, व्हाट इज द रीजन फॉर द वॉयलेट लाइट बेंड मोर देन द रेड लाइट? तो वॉयलेट लाइट बेंड ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वॉयलेट लाइट की स्पीड और वेवलेंथ दोनों कम होती है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी ही डिस्पर्स आउट हो जाती है, बेंड ज़्यादा हो जाती है, ये ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती है। रेड लाइट की वेवलेंथ और स्पीड ज़्यादा होती है वॉयलेट से, ये ज़्यादा दूर तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, एक डायग्राम दे रखा है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हैं, 12 वोल्ट से कनेक्ट है। अ स्टूडेंट हैज़ टू रेजिस्टर्स 2 ओम एंड 3 ओम, ये उसके पास अलग से और है। सी हैज़ टू पुट one of them in place of 2 as shown in the circuit. The current that she need in the entire circuit is exactly 9 ampere. So by calculation, which of the two resistors she should choose? इनके अलावा दो रजिस्टर और है उसमें 2 ओम 3 ओम, और उसको एक दो इसके आधार रेजिस्टेंस 2 की जगह उसे अपने ये रेजिस्टेंस में से कोई एक इसको लगाना है जिसमें 9 एम्पियर एग्जैक्टली करंट फ्लो होता रहे, ये कंडीशन है। ओम्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो V 12 वोल्ट दे रखा है, टोटल करंट फ्लो हो रहा है 9 एम्पियर, तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो R होगा 12/9 4/3 ओम। ये रेजिस्टेंस में से कौन सा लगाया होगा? इन दो की जगह उन्होंने R2 की जगह उस बच्ची ने कौन सा लगाया होगा? 2 ओम का या 3 ओम का? तो इसने 2 ओम का लगाया होगा R2 की जगह। देखो, अगर हम 2 इसका यूज करते हैं R2 की जगह, तो 1/4 प्लस 1/2, तो ये हो गया 3/4। R टोटल इसका निकालेंगे रिवर्स करके 4/3, तो उन्होंने R2 की जगह 2 ओम का रेजिस्टेंस चूज किया था, तो ये आंसर करेक्ट है 2 ओम। तो उसने R2 की जगह 2 ओम रेजिस्टर्स यूज किया, इस जगह ये रेजिस्टेंस इसने यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 27, आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन द पी प्लांट विद राउंड येलो सीड, फॉलोइंग टाइप ऑफ सीड्स वर ऑब्टेन्ड बाय मेंडल। तो सीड और नंबर दे रखे हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन 64। तो हम इसको ऑब्जर्व करके देखें तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन मेंडल के थर्ड लॉ से है। इसमें 9:3:3:1 का रेशो आता है, जो है मेंडल का थर्ड लॉ क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ है जो मेंडल ने यूज किया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। In humans, there is a 50% probability of the birth of the boy and 50% probability of the girl will be born. Justify the statement on the basis of the mechanism of sex determination in the human beings. फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, एक्स वाई मेल में होते हैं, फीमेल मेल। अगर क्रॉसिंग होगी तो बच्चे इस तरह पैदा होंगे, एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई। तो हमने देखे 50% फीमेल है और 50% मेल। लड़की या लड़के होने की 50% ही प्रोबेबिलिटी होती है। 28. Plastic cups were used to serve tea in the trains in early days. These could be returned to the vendors, cleaned and reused. Later, colored were used instead of plastic cup. Now, paper cups are used for the serving tea. What are the reasons for the shift from plastic to colored and then finally to paper cup? Its correct answer is, जो प्लास्टिक कप्स थे वो डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लेते हैं, वो बायोडिकम्पोज नहीं होते इजीली। फिर उसके बाद कुल्हड़ यूज में आने लगे, लेकिन उसके साथ समस्या ये थी कि जहाँ पर पीने के बाद वहाँ बहुत सारा मिट्टी और कचरा इकट्ठा हो जाता है। हालांकि उससे कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता है, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं था, बहुत सारे कुल्हड़ टूट जाते थे। लेटर ऑन क्या हुआ कि पेपर कप शुरू हो गए। पेपर कप को ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, रखना आसान है और यूज करने के बाद इसको रिसाइकिल भी आसानी से किया जा सकता है। दीज ऑल वर द रीजन्स बिहाइंड इट। 29. Explain where and how urine is produced. यूरिन किडनी फिल्टर करती है ब्लड से। किडनी के अंदर बोवेज कैप्सूल होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, और बोवेज कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलर होते हैं जो एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 30. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज और आर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डिकम्पोजिशन ऑल्सो हैपन्स? इसका करेक्ट आंसर हीटिंग ऑफ द लेड नाइट्रेट। क्वेश्चन बी. सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन ओपन टर्न्स ग्रे, इलस्ट्रेट इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाएगा ये फोटो डिकम्पोज हो जाता है तो सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31. द फॉलोइंग टेबल शोन द पोजीशन ऑफ द 5 एलिमेंट ABCDE इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इस तरह अरेंज है। आंसर द फॉलोइंग गिवन रीजन. विच एलिमेंट इज मेटल एंड वैलेंसी 2? इस मेटल की वैलेंसी 2 है और ये मेटल है।
रीजन ये सेकंड ग्रुप में है और सेकंड ग्रुप के सबकी वैलेंसी 2 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव? सी इज लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि 18 ग्रुप में है और यहाँ सब नोबल एलिमेंट है। थर्ड, आउट ऑफ डी एंड ई विच एलिमेंट हैज द स्मॉलर एटॉमिक रेडियस? डी और ई में से, डी और ई में से स्मॉलेस्ट रेडियस ई की होगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसकी एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस रिड्यूस होती है, घटती है, एटॉमिक रेडियस घटती है। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका इस तरह बनेगा, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोरीन के 7, तो कैल्शियम ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। Why do ionic compound not conducted electricity in the solid state but conduct electricity in the molten and aqueous state? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं एक्वस स्टेट में आयनिक रहते हैं और इसमें आयन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मॉल्टन स्टेट में भी आयन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फ्लो नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर जो आयन्स हैं फिक्स्ड रहते हैं। फिक्स होने के कारण वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते आयन, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होती है। 33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.33 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.42. क्वेश्चन फर्स्ट, इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर एंड डायमंड? तो वाटर में फास्ट चलेगी, डायमंड में स्लो चलेगी लाइट। सेकंड है, विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का निकालना है रेस्पेक्ट टू वाटर। इस क्वेश्चन में हमको ए एंड डब्ल्यू दे रखा है 1.33 यानी 4/3, ए एंड डी दे रखा है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर 2.42, डब्ल्यू एंड डी हमको फाइंड करना है। तो डब्ल्यू एंड डी हमको फाइंड करना है, तो ए एंड डब्ल्यू आपका 4/3 है, तो डब्ल्यू एन ए हो जाएगा 3/4। अगर इसको हम उल्टा कर दें तो डब्ल्यू एन ए निकल आएगा 3/4। अब क्या करना है, डब्ल्यू एन डी निकालने के लिए ये होता है CW/CA, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ए एंड डी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये है आपका 2.42। ये वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, CA/C डायमंड इंटू CW/CA। अब देखो ये तो कट गया, बचा अपना हमारा CW/C डायमंड। क्या किया, डब्ल्यू एंड डी निकालने के लिए हमने इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर हम, और ये किसके बराबर होता है, CW/CA। ऐसे ही स्पीड ऑफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इसका मतलब होता है CA/CD इक्वल टू 2.42।
इसका और इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस तरह इक्वेशन आ जाती है। सी ए से सी ए कट जाएगा तो सी डब्ल्यू पर सी डी निकल आएगा, यही हमको चाहिए। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कितना था हमारा, ये मल्टीप्लाई है, ये 2.42 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो भी वैल्यू आएगी वही इसका आंसर है। 34 है, मैच द फॉलोइंग पीएच वैल्यू ऑफ 1, 7, 10, 30 टू द सॉल्यूशन गिवन हाउ। इनमें ये पीएच वैल्यू आपको लगानी है। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होगा 10, गैस्ट्रिक जूस का 1, ब्राइन का 7 और NaOH का 13। एक्वस, जो एक्वस है NaOH, इसका 13 होगा। सेकंड है, अमित एंड रीता डिसाइडेड टू बेक ए केक एंड added baking soda to a cake batter. Explain with the Bayes reaction the role of the baking soda. Mention any other use of baking soda. तो बेकिंग सोडा को जब हम यूज करते हैं बेकिंग के लिए तो उसमें ये रिएक्शन होता है। NaHCO3 जब हीट होगा तो Na2CO3 बनेगा और CO2 रिलीज होगी। CO2 मेक द केक पफी एंड लार्ज बाई ट्रैपिंग CO2 इनसाइड द केक। अदर यूजेज हैं बेकिंग सोडा के, एज एंटासिड इसका यूज होता है। मेकिंग वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। मेकिंग ग्लास बनाने के लिए यूज होता है और पेपर बनाने में भी यूज होता है इनका। तो ये अदर यूज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सैंपल ABCD चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर ऑफ सॉल्यूशन टू ग्रीन, रेडिश, पिंक, ब्लू एंड ऑरेंज। देयर pH was recorded by 7 to 10.5 and 6 respectively. Which the sample has the highest amount of hydrogen ion concentration? Arrange the 4 samples in the decreasing order of their pH. तो ABCD है तो इनके pH A का 7 होगा, B का 2 होगा, C का 10.5 होगा, D का 6 होगा। सैंपल B हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है B, D, A, C। सेकेंड क्वेश्चन है, राहुल फाउंड दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस विच he stored a container has become very hard and lost its binding nature. What is the reason for this? Also write the chemical equation to represent the reaction in taking place. सेकंड का आंसर है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस H2O, ये मॉइस्चर लेकर के क्या हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। CSO को डॉट 2H2O, जो हार्ड होता है। रीजन, POP बाई एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर बिकम सॉलिड टू मेक जिप्सम। थर्ड क्वेश्चन, गिव एनी अदर यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अदर देन फॉर प्लास्टरिंग और स्मूथनिंग ऑफ बाल्स। इसका आंसर है मेकिंग चॉक स्टैचूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द फ्लावर फ्रॉम द गैमेट फॉर्मेशन
to fruit formation. (36) सर्किट में ये लैंप्स लगी हुई हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द सर्किट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैंप अरेंज्ड. तो ये पैरेलल में अरेंज हैं, पैरेलल में. एक्सप्लेन द रेफरेंस ऑफ टू योर अबव आंसर. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैंप्स. एडवांटेज ये है कि अगर ये कोई लैंप इसमें से फ्यूज हो जाती है तो बाकी लैंप भी जलती रहेंगी और सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. थर्ड है एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैंप ग्लोज द ब्राइटेस्ट. तो 3 एम्पियर की जो है ये ब्राइटेस्ट तेज जलेंगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई निकलेगा. तो 3/60 करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है. 20 ओम जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा तेजी से चलेगा. फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो वोल्टेज 60 ओम है और इनके एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है उसके पैरेलल में दे रखे हैं तो उनका आर निकाल लेंगे. ए का 60/3 20 ओम, बी का 12.5, सी का आ जाएगा 12, डी का हो जाएगा 20 ओम. अब टोटल रेजिस्टेंस इसका निकालना है 1/R टोटल. तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/12.5 प्लस 1/12 प्लस 1/20. अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू इज द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन एंड पेपर शोन इन द फिगर बिलो. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द पॉइंट आर एंड एस. आर एंड एस में मैग्नेटिक फील्ड बतानी है. तो करंट ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो होगा. गिवन R1 इज ग्रेटर देन R2 वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्जर. गिव रीजन. अगर R1 ग्रेटर है तो करंट फ्लो ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी. मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन सप्लाइंग करंट. थर्ड, if the polarity of the battery connected to the wire reversed, how would the direction of the magnetic field change. अगर करंट का फ्लो चेंज हो जाएगा, अगर ये अपवार्ड की बजाय डाउनवार्ड जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज मूव हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. एक्सप्लेन द रूल दैट यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर. रूल है राइट हैंड थंब रूल. इस तरह राइट हैंड थंब रूल लगेगा.